Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas, and today in this lecture I will be talking to you about the British economic policy and the second thing I'll be talking is the economic colonialism, right? This can come as an independent term also in paper, so please be very careful when you listen to this. Don't be mistaken that this question can be only asked in your mains examination. This can be very much asked in prelim examination. ठीक है जी, ये क्वेश्चन सिर्फ मेंस में नहीं prelim में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. ओके तो ये लेक्चर काफ़ी लेंदी लेक्चर है एक्चुअली, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत कहानी है, सच अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट दिस लेक्चर दैट आई हैड टू डिवाइड दिस लेक्चर इन 2 पार्ट्स. ठीक है जी, तो अभी आज हम बात करेंगे एवरीथिंग about British economy, their origin, all the background, and the critique of Indian economy. critique की बात करेंगे और nationalist का क्या रोल था उसके अंदर. we'll talk all that, right? तो इन लोगों के बारे में we'll be talking. and second part जो इसके अगला lecture होगा, that will be about 2 things. one is the theory of drain of wealth, and second thing I would be talking to you about all the systems, right? For example, there was permanent settlement system. I have already talked about it, otherwise I'll talk to you about Riawatwadi settlement system. Then so many Mehelwadi system was there. Mehelwadi, so I'll talk about it next lecture. There was Dadni system, there was a Jajmani system, there was Khatbandi system. So all these systems I will be talking in the next lecture. So next lecture will have one thing is drain of wealth theory, and rest of these systems I will be talking. And then your whole economic colonialism, this part of the history would be over, right? So let us begin with the today's lecture. Now, before I begin with get into details of today's lecture, I would like to give you a broad overview of today's lecture. And please remember that this even this overview would be a little longer than any normal lecture. So देखते हैं कि कैसा ओवर थोड़ा लंबा चलेगा ये. तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया, अगर आपने गौर किया, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, इकोनॉमिक इज़ फाइन, एवरीवन नोज दैट, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, राइट? नाउ यहाँ से शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से. व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियलिज्म? कॉलोनियलिज्म होता क्या है? इसका मतलब होता है सब्जुगेशन. ठीक है जी, अब सब्जुगेशन का मतलब क्या है? अपने अधीन किसी को कर लेते हैं. ठीक है, सो सब्जुगेशन, किस चीज़ की सब्जुगेशन? ऑफ अ बैकवर्ड, राइट? ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो सब्जुगेशन ऑफ अ बैकवर्ड रीजन, सम फॉरेन टेरिटरी और वट एवर, एनी लैंड, राइट? बाय whom? बाय अ powerful country or powerful nation, and or let's call it a mother nation also, right? Powerful nation or mother nation. And why would they, how would they control? They would have social, economic, political, administrative, cultural and military. Social, economic, political, administrative, cultural and military control. ठीक है जी. अब लेकिन नाउ दिस फिनोमिना इज वेरी ओल्ड. दिस इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट. इट इज एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी, राइट? as old not humanity but as the oldest society. लेकिन in true sense this comes into force, proper implementation, this phenomena of economic colonialism in 19th century only. Okay, and this happened when this is during this time those advanced European nations, right? I'll use 3 words over here, it's very nice actually. So what happened, that advanced European nations in the name of advancing, ठीक है, for advancing their advanced civilizations, they would to all these backward countries जो advance करनी को civilization, they would be extending their control over them, right? तो control, तो advanced countries to further advance their interest, they would try to control the backward countries, and this is what is happening under the economic colonialism. And obviously they would like to have economic control, right? Now it is for this control, ये control करने के लिए, what happens that
दे हैव टू गेट, दे गेट रॉ मटेरियल, यू नो जो कंट्री गुलाम है, द कॉलोनी, वहां से उनको क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल, मार्केट, and they would have new fields of investment, so new areas. For example, British invested in railway in India. In India, railway was not there, right? So these are the three things. They would like to control the country by advancing in these three things, with having taking raw material for them, सेलिंग द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, उनसे रॉ मटेरियल लिया, उनको दे दिया, उनसे कॉटन उठाई और एक शर्ट बनाकर मैंने उनको दे दी. तो ये यही तो है इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का जो एक बेसिस चल रहा है. ठीक है. नाउ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो इनकी ये रेवेन्यू पॉलिसीज और लॉज को लेकर के ऊपर बेस था. और जो ये लॉज इन्होंने किया कैसे, ये कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में, दे डिड कंट्रोल दिस, ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल्ड दिस थ्रू लॉज, राइट, लॉज एंड पॉलिसीज एंड सिस्टम्स, जिनके बारे में अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा. दी सिस्टम्स जो सारे हैं, सो दे डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी इन सिस्टम्स के थ्रू. ठीक है. तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें जो कॉलोनियलिज्म है, इसके अगर मोटा मोटा हम देखना चाहें क्या एस्पेक्ट्स रहे इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म के इंडिया के अंदर. ठीक है. पहला एस्पेक्ट इसका था, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, कि इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो था उनका, रादर इकोनॉमिक, ओके लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक चीज तो ये होती है इकोनॉमिक, okay, let me just put it again, this is not clear, economic administration. ठीक है. तो they were bringing changes in the economic administration and also the revenue policies plus revenue policy. ठीक है. ये था एक हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली ओवर हियर व्हेन आई एम राइटिंग दिस, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया. इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म कैसे कर रहे हैं, वो उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं. ठीक है जी. नंबर वन इज इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने चेंज की कैसे, जैसे उन्होंने हाउ डिड दे डू दिस बाय इंटेंसिफाइंग रेवेन्यू कलेक्शन. ठीक है. रेवेन्यू कलेक्शन इनके अंदर इन्होंने इससे फर्क डाल दिया, रेवेन्यू कलेक्शन, तो इसको इंटेंस कर दिया इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को यहाँ पे. एक तो ये चीज कर दिया. ठीक है. अब देखो दुनिया के अंदर, जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, चेंज जो होती है इट इज मस्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग ओन सिस्टम. आपको चेंज लानी पड़ेगा. हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने मायंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था. दैट इज वाई इट इज सेड दैट द माइनॉरिटी लैंग्वेज या कल्चर है वो डेंजर के अंदर होता है, क्योंकि कोई पता नहीं लगता कौन किसको डिस्ट्रॉय कर दे. ठीक है. कॉलोनियल पावर जो होती है वो सटल पावर भी यूज करती है और ब्रूटल पावर भी यूज करती है. ठीक है. अब क्या हुआ, तो सी जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी तो यही कर रहे हैं, सटली भी करेंगे और ब्रूटली भी करेंगे. तो इसीलिए माइनॉरिटीज थोड़ा घबरा कर रहती है ना. जैसे कि एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो उसका, कि वो माइनॉरिटीज को तंग कर रही है, क्योंकि ब्रूटली वो ना करें चाहे पर, लेकिन सटल वे में जो हो रहा होता है. ठीक है ना. तो दैट इज हैपनिंग, राइट, जो एक बाकी रिलीजन का सप्रेशन हो रहा होता है. तो ब्रिटिशर्स ने भी सटली और ब्रूटली इकोनॉमिक पॉलिसीज को अप्लाई किया. ठीक है जी. एक तो कारण ये हो गया इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन. दूसरा था इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास, राइट. सो वी हैव न्यू सोशल क्लास. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? For example, what is the new social class? Merchants are there, money lenders and officials, all these people who had money with them. This is a new social class we have, right? तो देखो ऐसा हो रहा है कि अब what is the difference between these money lenders and earlier money lenders? You can say there earlier also there were some money lenders, है ना. तो earlier जो इनमें और उनमें क्या फर्क है, जो the new money lender was getting money out of the laws made by the Britisher. पुराने मनी लेंडर और नए मनी लेंडर में फ़र्क ये है कि जो पुराना मनी लेंडर था वो जो पैसे कमा रहा था वो नॉर्मल तरीका था. जो नया है वो ब्रिटिशर के नए लॉज, उन लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज, पॉलिसीज और सिस्टम्स के कारण पैसा कमा रहा है. ठीक है. और पुअर तो वैसे कभी कुछ नहीं कर पा रहे थे. एंड देन देयर वाज लैक ऑफ एजुकेशन ऑल्सो. ठीक है ना. तो you understand it better this way that this social class was created. तो ये एक और एस्पेक्ट था इंडिया में इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का. तीसरा एस्पेक्ट क्या था, अब जब सब परेशान हो जाते तो सब क्या कहते, देखो पहले इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू पॉलिसी आती है, उसकी वजह से नई सोशल क्लास आ रही है और उसकी वजह से अब पंगे हो गए, लड़ाई हो गई, तो क्या करेंगे, व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव अ क्वारल, व्हाट डू, यू गो टू अ कोर्ट.
So we have a new court plus a legal system. We have read about this in detail already. पहले से पढ़ चुके हैं. तो कोर्ट सिस्टम प्लस लीगल सिस्टम जो आया, विच दिस वाज वेरी इनएफिशिएंट, वेरी लेंदी, वेरी कॉस्टली. तो ये सब करप्ट, वेरी करप्ट. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी. चौथी पॉलिसी जिसकी वजह से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंडिया के अंदर चला सके, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, वाज द रेशियल एंड कल्चरल इनइक्वालिटी. रेशियल, ठीक है, रेशियल एंड कल्चरल इनइक्वालिटी, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, रूलर्स और रूल्ड के बीच में. तो ये ऐसा इनका सिस्टम चल रहा था. ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड है जिसके अंदर आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट द इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म एंड द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी. एंड बिफोर गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स, मैं आपको फिर से वापस लाइक पूरी इकोनॉमी हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, समय टाइम वाइज हम इसके डेट वाइज इसको ट्रेस करेंगे. उससे पहले एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूं आपको अभी मैं. ठीक है जी. सो दिस मच इज क्लियर, आई होप टू एवरीवन. ओके, राइट नाउ I'll tell you something about the position of Indian economy at this time क्या चल रही थी. ठीक है, तो देखते हैं अब इसके बारे में कि हम पढ़ रहे हैं अब पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अब इससे पहले वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट वर ब्रिटिशर्स वर डूइंग. बिफोर वी अंडरस्टैंड दैट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हिच वाज डिग्रेडेड बाय द ब्रिटिशर्स. उसके बारे में थोड़ी सी अब हम बात करेंगे. ठीक है, हमारी इकोनॉमी, वी वर फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ सफिशिएंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन पेपर. ठीक है, दैट व्हाट वाज दैट ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया. आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन दैट ब्रिटिश डिड इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म. लेकिन हमारे पास था क्या? व्हाट डिड वी हैव दैट दे वर एबल टू डू इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म? व्हाट वाज देयर टू लूट फ्रॉम अस? So I am answering you that question. One was there, we were self-sufficient, number one. We were self-governing. So this was also ruined by Britishers, right? Now we were a village community and we were based on self-subsistence. Okay, so we were totally enabled, dependent on self. If you see that, just this part, we were totally dependent on self. We were self-sufficient, we were self-governing, and we were self-subsistence, right? Now basically this whole economy, over here, this was what do you call it? Was a union, I'll say a union of agriculture plus handicraft. इन दोनों का यूनियन था. इनके बेसिस पे हमारी पूरी ये इकोनॉमी चल पा रही थी. ठीक है, और जो लैंड के साथ हमारा रिलेशनशिप था इस टाइम पे, द रिलेशनशिप विद वाज लैंड, इट वाज बेस्ड ऑन कस्टम. कस्टम कैसे थे उस टाइम पे, ठीक है, एंड प्लस यूजेज की यूजेज कैसी थी उस टाइम के, उसके इन दोनों बातों पे डिपेंड करता था. ट्रेडिशन क्या था उसका, ठीक है. एंड हमारा ये पूरी बातों के कारण, ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग दैट आई हैव सेड टू यू अबव, वी हैड अ वेरी स्टेबल सिस्टम. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ. बट what happens that so this was a good thing in our economy, but there was what was the negative thing about our economy? Negative aspect, it was that we were a closed economy. Closed, we did not allow others, right? Because there was no mobility of labor, right? And that was the weakness of our system. So overall we can say that जो colonial empire था, इसकी वजह से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई, ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज, जो ये हमने इतना सारा कुछ लूज किया. एंड इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर था या ऑपरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी था वो हिल गया. ठीक है, इट विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट. सो एक्चुअली में व्हाट वाज बीइंग सर्व्ड वाज अ ब्रिटिश इंटरेस्ट. ठीक है जी, क्या सर्व हो रहा था? ऑलवेज ब्रिटिश इंटरेस्ट वाज बीइंग सर्व्ड. दिस इज द पॉइंट इन दिस. एंड देन वी वर सबऑर्डिनेटेड इकोनॉमी. ठीक है, अब I have to talk about one more phase in the background of this economic whole chapter on economy, and this is after this we will start from the beginning, that how they were exploiting and every detail of it, right? So we will talk about the phases of economic exploitation in India. Okay, so we are talking about the phases of economic exploitation. Economic exploitation in India by Britishers. We are talking about this. So जो पूरा analysis of economic जो colonial economy है, it was done in India. There was a Marxist leader who did this. Marxist leader.
एंड उनका नाम था आरपी दत्त, राइट। एंड यू नो इनकी जो पब्लिकेशन थी जिसके अंदर इन्होंने ये जिस नाम से ये प्रिंट हुआ था, जिसकी पूरी कंपाइलेशन उनकी रिसर्च है, उसका नाम था इंडिया टुडे। इंडिया टुडे, राइट, दिस इज नॉट द इंडिया टुडे मैगजीन। खैर, तो जो फेजेस हैं वो कौन से फेजेस हैं? द फर्स्ट फेज, उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज इज द व्हाट डू यू कॉल दिस इज फर्स्ट फेज 1757 से 1830 तक ये फेज चलता है, ठीक है। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस फेज? वी कैन कॉल दिस एज अ पीरियड ऑफ मर्केंटलिज्म, राइट। मर्केंटलिज्म और मर्चेंट कैपिटल इस टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रही थी, मर्चेंट कैपिटल, ठीक है। यानी कि ये एक पीरियड था जहां पर डायरेक्टली वो प्लंडर कर रहे थे इंडिया के अंदर, डायरेक्ट प्लंडर हो रहा, लूट रहे थे, एंड देयर वाज मोनोपोली ओवर द रिसोर्सेज। मर्केंटलिज्म इज यू नो इट्स लाइक और देयर वाज अ मर्केंटलिज्म हियर, ओके, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन। मर्केंटलिज्म, और जो ये मर्केंटलिज्म था, हम इसको दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल इट एज द इकोनॉमिक काउंटर पार्ट ऑफ यू नो द of nationalism on their part, on the Britishers part, right, जो ये कर रहे थे, इकोनॉमिक काउंटर पार्ट था, या इसको इंपीरियलिज्म भी कह सकते हैं दूसरे हमारे एंगल से, ठीक है। सो इट वाज एन इकोनॉमिक काउंटर पार्ट, इकोनॉमिक काउंटर पार्ट। तो ये हो रहा था इसके अंदर, राइट। एंड इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑफ वट एवर द सरप्लस रेवेन्यू वॉज देयर, इट वॉज इन्वेस्टेड, एंड इसके अंदर क्या हो रहा था, सरप्लस revenue whatever was collected by them, it was invested to buy finished goods, okay, finished goods, and it was purchasing finished, they were it all led to initiation of industrialization in England, जो ये वाला फेज था। एंड ठीक है, और सी इट इज नॉट जस्ट दैट इंडियन गुड्स आर डूइंग इट, ठीक है ना, कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे कि जो जिसके अंदर इंग्लिश प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन हमारा अभी पर्पज, फॉर आवर पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जस्ट दिस मच इज एनफ, राइट। एंड देन कम्स द सेकेंड फेज ऑफ दिस, एंड दैट फेज इज सेकेंड फेज, एंड दिस इज फ्रॉम 1830 टू 1868। पहले फेज में तो सरेआम लूट रहे हैं, ठीक है, सरेआम मर्केंटलिज्म की पॉलिसी से दूसरे के। दिस इज द एज ऑफ क्लासिकल, वी कैन कॉल इट क्लासिकल एज ऑफ फ्री ट्रेडर्स, जो इसके अंदर चीज चल रही थी, फ्री ट्रेडर्स, या फिर इसके अंदर इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट था जो वो एक्सप्लॉयटेशन करने लग गया था। यानी इंडिया वाज बिकमिंग अ मार्केट फॉर ब्रिटिश टेक्सटाइल एंड ऑल्सो सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, एंड बिकॉज देयर वाज हाई टैरिफ इन्वॉल्व, यू नो, सच थिंग्स वर देयर, एंड सो बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग दैट इंडिया was giving them raw material and British were using this raw material and selling it to India, and selling what, let's say clothes or manufactured goods, they were selling this to India. This was happening. See, you have to understand this phase of economy, only then you will be able to understand all the boycott movement that and non cooperation movement and civil disobedience movement which come later, if you understand economic exploitation by Britishers better. And there was third phase also of economic exploitation, and this phase was from 1858. This is like this above over here, this is also 1858, not 68, nothing happening in 68. Now 1858 to 1947 तक 100 सालों तक लगभग ये फेज चलेगा, and this is also known as the age of financial imperialism. Imperialism, right? Or we can say that this is the phase where finance was by coming through the capitalist, huge investment was made in India, right? There was surplus capital with Britain in this phase, and what they were doing, they investing the whole of the capital in India, and with a guaranteed system. In what was happening in this, there was a guaranteed system that whatever you money invest in India, there would be surely be a return on that investment, right? I mean, the investment of it was a part of private capital which was guaranteed with returns which were insured, right? Now in other words, that was public return was assured on the public cost, यानी कि गवर्नमेंट को जो रिटर्न मिले वो हम दे। फॉर एग्जाम्पल, इन अदर वर्ड, इवन लेट्स से टुडे दिस सम फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया लिमिटेड मेक्स अ लॉस, right? But if we government of India ensures that don't worry, you will make a profit come what may, even we have to give you money through the
public the tax that we have collected. Same way, same thing, it is the same thing that Britishers were British, but this is a government concern. Now government ensures reliance that if you invest in this sector, will ensure you that you have a profit. So same way, what was Britisher doing? They were telling that you go and invest in India, we'll assure you this much return will be there, and if there is no return, then we will give you money out of Indian taxpayers money, out of Indian revenue. हमारा पैसा फायदा उनका, ऐसा चल रहा था. लेकिन जो मैं आपको रिलायंस वाला एग्जांपल दे रहा हूं उसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा. उसके अंदर व्हाट इज हैपनिंग, एक फर्क आ रहा है. उसके अंदर फर्क ये है कि ब्रिटिशर वाले केस में पैसा बाहर जा रहा है, यहाँ इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह रहा है. देर आर डिफरेंट कंसिडरेशन जिसके लिए हम वी मेक श्योर दैट कंपनीज गेट द प्रॉफिट. ठीक है, तो खैर आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई एनीथिंग, बट लेकिन दैट इज हाउ इट इज. जैसे अब रेलवेज की बात करें और शिपिंग की बात करें और प्लांटेशन इंडस्ट्री, ऑल दीज इंडस्ट्रीज द टाइम ऑफ ब्रिटिशर इंश्योर दैट somebody gets the profit out of it, and that is how this system of guaranteed system was implemented, right? And then these banking and all these managing agencies, these were there, right? And जो return होता था, return on investment, जो return on investment होता था, this was the biggest source of drain of wealth in India, and इसको जो उस टाइम पर public debt of India के नाम से भी कह देते थे. तो जो drain of wealth होती थी through this age of financial imperialism, उसको हम वो पब्लिक डेट ऑफ इंडिया भी कहते थे. हमारा कर्जा है वो, ठीक है, कि उनको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो हमारा कर्जा हमारा बन जाता है उनके प्रॉफिट पूरे करने के लिए. ठीक है जी. तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर. एंड नाउ आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड वेयर वी विल टॉक अबाउट ऑल द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन डिटेल, and then we'll end the lecture, right? This will be little long lecture, so don't worry about it. Okay, let me just delete this one. Okay, so let's talk about the period of 1600 to 1757, right? 1600 to 1757. What is happening? Okay, so first phase, let's see. What happens that first there is East India Company. We know this is a trading company. This is not company which has come India to rule it. This is just a trading company जो अपने साथ goods लेकर आई या precious metals लेकर आए into India, और उसके बदले में so they got metal plus their own goods, and this is for into India, and they were, and इसके बदले में for in exchange for this what they wanted Indian textile. अभी हमारा टेक्सटाइल लेंगे, कॉटन नहीं ले रहे, अभी हमारी रॉ मटेरियल नहीं, कपड़ा ले रहे हैं, स्पाइसेस ले रहे हैं, एंड दे वुड गो टू इंग्लैंड एंड सेल दिस देयर एंड मेक अ ह्यूज प्रॉफिट. ठीक है जी, दिस इज फर्स्ट स्टेप हो गया. ओके, द फर्स्ट स्टेप. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेप. अब इससे क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, नाउ एक्सपोर्ट्स वेंट हाई. व्हेन एक्सपोर्ट्स गो हाई, हु अर्न्स इन इंडिया? दिस मीन्स दैट लोकल रूलर अर्न्स. दैट मीन्स लोकल रूलर इज हैप्पी. लोकल रूलर इज हैप्पी, सो ही वेलकम्स ब्रिटिशर्स. सो ब्रिटिशर्स आर वेलकम इन इंडिया. ठीक है, अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस. ओके, लेट्स गो देयर एंड लेट्स number 3, step number 3. What happens that Britisher who are sitting in England, they are jealous. Why they are jealous? Because see, they are saying that Indian cloth is everywhere. Even the I read in one of those novels I was reading that वो Britisher society के ऊपर लिखा गया था वो नॉवल. उसके अंदर बात की गई है कि कैसे they are complaining that हर चीज इंडियन क्लोथ से बनी है. इवन द हैंकरशीफ ऑफ द लेडी, जो रुमाल वहां की एक लेडी के हाथ में, वो भी इंडिया से आ रखा है. इंग्लैंड के अंदर सब कुछ इंडिया से जा रखा था ओरिजिनली. इनफैक्ट जहां तक कि अगर आप देखें, रॉबिन्सन क्रूजो नाम का एक बुक लिखी गई है, उसके अंदर ही टॉक्स अबाउट दैट हाउ इंडियन क्लोथ वाज एवरीवेयर. इफ यू वांट टू नो द नेम, ऐसे आई जस्ट मेंशन रॉबिन्सन क्रूजो, इस बुक के अंदर ऐसा लिखा गया है. ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स वर इवन जेलस, इतना मतलब बड़ा इंपैक्ट हो गया. ठीक है, अब चौथी चीज क्या हुई, तो अब प्रेशर आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि कुछ किया जाए. ठीक है, तो देयर वाज अ प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो इन 1720, सो व्हाट हैपेंस, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, अ लॉ इज पास्ड. किस चीज के लिए, विच फॉरबिड्स वेयरिंग और यूजिंग प्रिंटेड और डाइड कॉटन क्लॉथ. लॉ पास्ड फॉरबिडिंग इंडियन क्लॉथ. ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन 4 steps over here. But what happens after this, things don't stop here, right?
British know that there is a huge market in India. So in spite, but you know, Indian at the same time, Indian market was so strong that in spite of this law and in spite of there was a huge import duty in British. India के goods जब ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन के from British side, when Indian goods go to Britain, तो ब्रिटिशर आर इंपोर्टिंग इंडियन गुड्स अपने देश में मंगवा रहे हैं. सो व्हाट दे डिड, दे पुट इंपोर्ट ड्यूटीज दैट व्हाटएवर इज इंपोर्टेड टू ब्रिटेन from England, from India, for example, silk or cotton textile, it was highly taxed, right? And you know, it this is how it kept on going on. And Indian market, so there was law was passed, plus there was import duty, okay, import duty. But in spite of this, Indian market held its foreign market. Indian manufacturer held its foreign market. ये हो रहा है यहाँ पे. एंड दिस वाज गोइंग राइट अप टू द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी. व्हाई अप टू मिडल ऑफ 18th सेंचुरी? बिकॉज उस टाइम पे 18th सेंचुरी में, बिकॉज उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगी. बिकॉज व्हाई अप टू मिडल ऑफ 18th सेंचुरी? बिकॉज एट दैट टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कम्स विच विल एब्सोल्युटली चेंज द फेज ऑफ द दिस ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज जितनी चल रही हैं, ठीक है. एंड अब चलते चलते, क्योंकि अब मिडल ऑफ 18th सेंचुरी आ गई. 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1700 ऑनवर्ड्स, ठीक है. तो जो 1700 ऑनवर्ड्स क्या हुआ यहाँ पे, वहां पर मिडल ऑफ 18th सेंचुरी की बात करें तो दैट इज आफ्टर 1750. तो 1757 के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है जी. अब आफ्टर व्हेन दिस प्लासी वॉर हैपेंड, कंपनी व्हाट डिड कंपनी डू? इट स्टार्टेड कंट्रोलिंग बंगाल, ठीक है. एक मिनट, आई जस्ट राइट इट हियर. सो कंपनी कंट्रोल्ड बंगाल, बंगाल पर कंट्रोल हो गया इनका. एंड स्लोली इट स्टार्टेड, लेटर ऑन इट आल्सो गेट्स द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल. एंड देन स्लोली कंपनी स्टार्टेड यूजिंग इट्स, नाउ कंपनीज गेट कंट्रोल बंगाल, एंड विद कंट्रोल company also got control of the revenues of Bengal. And with control on revenues, what happened that company used this revenue to finance its export of Indian goods, ठीक है. एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स, दिस इज व्हाट ब्रिटिशर्स वर डूइंग इन इंडिया. क्या कर रहे थे? हमारे गुड्स हमारे से ही खरीद के हमारे पैसे हम ही को देते थे खरीदने के लिए और अपने पास ले जाते थे. व्हाट वर ब्रिटिशर्स डूइंग? दे वुड take away money from us in the shape of the revenue from Bengal, and then pay with that very money for our goods and take those goods to back to England. This is what they were doing. हमारी चीजें हमारे पैसे से ही हम ही से खरीद लेते थे. This is what Britishers were doing, put very simply, ठीक है. So this is like one thing, right? Now Indian goods, plus they also gained their political power with this. Now, and not only this, this also led to political power plus low wages, and they would pay very low wages to Indians, ठीक है ना. एक तो ये चीज कर रहे थे. एंड और क्या कर रहे थे इस टाइम पे? द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे, द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इट हैड अ मोनोपोली ओवर द ट्रेड, वी नो दिस थिंग. एंड सो वीवर जो था इंडिया के अंदर, वो दोनों तरीके से इस टाइम पर लूज कर गया. जो वीवर था इंडिया के अंदर, वीवर बुनकर, कैसे लूज कर गया? एज अ बायर भी लूज कर गया. अब कुछ खरीद भी नहीं सकता था क्योंकि बाहर से मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज महंगी आती थी. और एज अ सेलर भी लूज कर गया. दोनों तरीके से इंडियंस की हार हो रही है यहाँ पे. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो अभी तक आई होप आप समझ गए हैं. सो जस्ट टू क्विकली रिपीट इट, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वहां अपने साथ कुछ सामान लेकर आए, उसके बाद वो हमें इंडिया के अंदर दे सोल्ड इट टू इंडियंस, दे टुक सम ऑफ इट बैक देयर होम, दे सोल्ड इट दोज गुड्स एट देयर होम, अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स. देन स्लोली व्हाट हैपेंड? इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज. देन लोकल रूलर इज वेरी हैप्पी, ही इनवाइटेड ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिश देयर वाज सच अ ह्यूज एक्सपोर्ट दैट इवन ब्रिटिशर्स वर वेरी हैप्पी. ब्रिटिशर बहुत खुश हो गए. फिर तो वहां की गवर्नमेंट ने फिर लेकिन कुछ ब्रिटिशर जेलस भी हो गए, तो ब्रिटिशर ने फिर लॉ पास कर दिया कि इंडियन क्लॉथ को यूज नहीं कोई करेगा. एंड देन फिर भी इंडियन क्लॉथ ने उसकी फॉरेन मार्केट के ऊपर कंट्रोल रखा. बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी तब जाकर ये कंट्रोल खत्म होता है. एंड देन कम्स द बैटल ऑफ प्लासी, एंड यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर प्लासी, ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अब इसके बाद देखते हैं क्या हुआ. अब इसके बाद क्या हुआ कि हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड इन इंग्लैंड, ठीक है. अब हैवी ड्यूटीज आ गई यहाँ पे, ये इसके बारे में वी नो दिस, वी ऑलरेडी टॉक्ड, लेकिन नाउ ड्यूटीज वर फर्दर इंक्रीज, राइट. एंड देन something very strange which is also the real blow to the Indian handicraft, and that was we lost foreign market and local market as well, ठीक है. क्यों?
अब यहां से क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का असर पूरा दिखाई देना शुरू हो चुका है. सो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई जिससे वी लॉस्ट फॉरेन मार्केट प्लस डोमेस्टिक मार्केट, दोनों चीजें हम यहां पे लूज कर गए. ठीक है, फॉरेन भी गया, डोमेस्टिक भी गया. एंड क्या हुआ, विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो केम सो मेनी सोशो एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन ब्रिटेन, प्लस there were so many modern machines and they were manufacturing at a very fast rates, बड़ी तेजी से मैन्युफैक्चर हो रहा था क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, जो ये क्रांति आई इंडस्ट्रियल लेवल पे कि बहुत तेजी से सब चीजों की प्रोडक्शन हो रही थी वहां पे. ठीक है ना, और फैक्ट्री सिस्टम इस टाइम पर आया. फैक्ट्री सिस्टम क्या होता है, फैक्ट्री सिस्टम पहले क्या हो रहा था, घरों के अंदर ही प्रोडक्शन होती थी, रॉ मटेरियल घर घर जाता था, वहां पे सामान बनता था. बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस केस, दैट फैक्ट्री सिस्टम हैज कम. दैट मींस दैट factories were established and things were being manufactured in factory than at home, right? So that is the opposite of it is a put up system, जहां पर क्या हो रहा है कि जो goods होते हैं वो घर घर में जाकर manufacture होते हैं, right? And then there was capitalism also, ये यहां पर हो गया capitalism, right? Plus there were so many other factors at work, so many other things. So I will talk to you about all those other things, right? There are basically 5 things apart from all this long story which worked in the favor of the Britishers. And what were those things, or Britishers introduced those, one of those things. Number 1 was that British monopoly was there, right? British monopoly was there. You know, how did they gain their monopoly? There are just 2 ways. One was war and other was colonialism. पहले वॉर करो और फिर इसको कॉलोनियल बना लो और इसी तरीके से ब्रिटिश की मोनोपोली हो गई, राइट? And then once you had colonies, so you had new market for British exports. अब आपकी जब इंडिया कॉलोनी ब्रिटिश की बन गई तो इट बिकेम अ न्यू मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स या ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स, जो ब्रिटिश इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे. एंड देन यू नो प्लस ब्रिटिशर्स व्हाट डिड दे डू, दे यूज द लेटेस्ट टेक्निक्स, राइट? एज आई सेड अबव आल्सो, दे यूज द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक, न्यू साइंस एंड टेक. तो बिकॉज ऑफ दैट दे कुड ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, जिसकी वजह से दे वर डूइंग बेटर. एंड व्हाट वर दीज न्यू एरियाज जहां की मैं आपसे बात कर रहा हूं, these were of course in Asia, and then Africa was there, and then West Indies was there, West Indies, right? Australia was there, and for Latin America was there, Latin America, and then Canada was there. Okay, so on. I mean, China was there, so such countries were there, right? Now this fact is especially true in case of the cotton textile industry. ठीक है, जो सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी ब्रिटेन में कारण था वो कॉटन टेक्सटाइल ही इंडस्ट्री था. दिस फैक्ट इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, so British they had developed and British had already developed, as I just talked above, they had developed a colonial pattern of economic growth. हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई ब्रिटिशर्स की, और एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, and one side we'll talk about economic growth, and on the other side I will be talking to you about that colonialism. So we have economic colonialism. ठीक है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं. तो colonialism की बात पहले से चल रही है और मैं इकोनॉमिक उसके साथ जोड़ रहा हूं. तो वो कॉलोनियलिज्म की बात पहले से कैसे चल रही है, जो कॉलोनियल पैटर्न ऑफ ट्रेड आ गया था, कॉलोनियल पैटर्न ऑफ ट्रेड, this was coming. Now what do you mean by a colonial pattern of trade? It means that you know, these colonies and underdeveloped, let's say India, right? ठीक है, India was to give raw material plus be the market for British goods. ये हो रहा था. तो ऑन द कॉलोनियल पैटर्न क्या था, इंडिया हमें उनको रॉ मटेरियल देता था, वो हमें गुड्स देते थे. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जिसके बारे में मैं आपसे यहाँ बात करना चाह रहा था. ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट पुट अ लाइन हियर. Okay, number 2. अब number 2 देखते हैं. Number 2 is that because now they had this monopoly, right? This monopoly was there. So what did they do? They had extra money, or let's say in other words, in technical legal history the economic history words, we have word capital. They had extra capital. Now with capital, what did they do? They invest in machinery. तो इन्होंने मशीनरी के अंदर यहाँ पे पैसा लगा दिया, और मशीनरी से और प्लस फैक्ट्री से, अब मशीनरी आ गई तो फैक्ट्री सिस्टम आ जाएगा. विद मशीनरी फैक्ट्री सिस्टम इज पावरफुल. सी इन फैक्ट्री सिस्टम ओनली यू हैव मशीन्स इन द फैक्ट्रीज. ठीक है ना. And now the people who had this money, they were not the feudals.
who would invest or spend their money into luxuries. They were not feudals. In fact, they were merchants, and these merchants over here, they would invest money to earn more money. ठीक है ना? This is what they were doing, right? And this is how the things moved on. Okay, so now let me just talk to you about what next. This was number 2. Okay, so we have number 3 over here. Number 3. The third factor that I would like to talk to you about, economic colonialism of India, जिसने रोल प्ले किया ब्रिटिशर्स का इंडिया के आने में, and that was the growing population. How Britishers could control Indian. क्या हुआ, फ्रॉम 1740 से लेकर टू 1780 ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉपुलेशन थी वो 2 times हो गई, डबल्ड ड्यूरिंग ऑल दिस वाइल. ठीक है, नाउ दिस हेल्प देम, बिकॉज इससे क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ है, बहुत सारे कारण थे ऐसा होने के भी. बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वर साइंटिफिक एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर सैनिटेशन, एंड देन न्यू मेडिसिन वर देयर, राइट. व्हेन आई टीच यू वर्ल्ड हिस्ट्री, मैं इसके बारे में काफी डिटेल में बात करूंगा दैट व्हाट इज दिस इम्पैक्ट. And then the fourth thing that happened at this time, now what was this fourth thing? This was the Britishers, they were fighting other colonies. They were expanding, using this money to expand into new and new colonies, and this way they were earning more money, right? And then comes number 5, and which is about that the demand was very high now, right? Demand was very high, and this was met with industrial revolution. इसका आंसर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में था, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. इस टाइम पे टेक साइंस एंड टेक आगे निकल गया, एंड ब्रिटिश कुड सर्व द वर्ल्ड. इंडियंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी. व्हाट काइंड ऑफ इन्वेंशंस, फॉर एग्जांपल हारग्रीव्स वाज देयर, यू माइट हैव हर्ड ऑफ दीज नेम्स, और क्रॉम्पटन वाज देयर. See, most of you people have studied these words in context of world history, but they are equally applicable in Indian history also. You have to write them in paper. Hargreaves is there, or Crompton is there, or Watt, James Watt, he was there, or let's say Cartwright was there. Cartwright is very important because he invented that, what do you call it, power loom. We still use power looms in India, ठीक है. वो सूरत के पास, all those places, right? And so this thing is right. So now please and these things can be well utilized only with the factory system, that is for known, right? Now see, understand one thing, कि जो manufacturers थे, the manufacturer, it was desire of the manufacturer कि that they increase the production rapidly for expanding markets, and their capacity also. एक तो अपनी production rapidly बढ़ा expanding market लिए, and their capacity also to invest, and the needed capital which led them to utilize the existing technology and call forth new inventions. तो ये लिंकेज जो मैंने सेंटेंस बोला है पूरे इस पार्ट के अंदर आती है, ठीक है. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में प्रैक्टिकली बात करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. देखिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, एंड यू कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन आल्सो दैट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, क्या ये खत्म हो गई है? अब मेरे मुताबिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी भी चल रही है, बिकॉज उसके बाद भी हम नई नई चीजें इन्वेंट करते जा रहे हैं. इंडस्ट्री के अंदर नई नई इंडस्ट्री इवॉल्व होती जा रही है. एक बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई, आई सीरियसली डाउट कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब खत्म हुई है कि नहीं हुई. ओके, सो अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन ब्रिटिश. ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. क्या इंपैक्ट हुआ उसका? एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, उनका हाई स्टैंडर्ड हो गया ब्रिटिशर्स का, इसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमारा स्टैंडर्ड गिर गया. देयर वाज हाई अर्बनाइजेशन आल्सो इन ब्रिटिश इन इंग्लैंड, एंड देयर वाज अर्बनाइजेशन है तो वहाँ पोल्यूशन भी होगा, फिल्थ भी होगी. एंड इस पोल्यूशन और फिल्थ के बारे में बहुत जगह बातें की गई हैं. चार्ल्स डिकेंस ने अपने नॉवल के अंदर इनके बारे में बात कर रखी है. ठीक है, तो ऐसा हो रहा था. तो एक एंटायरली न्यू क्लास ऑफ सोसाइटी आ चुकी है इस टाइम पे. एक तरफ क्या हो रहा है, सोसाइटी के अंदर दो हो गई हैं. एक तरफ है ओनर्स एंड एक तरफ है एम्प्लॉइज या फिर वर्कर्स कह सकते हैं. तो एक तरफ है ओनर, एक तरफ है वर्कर्स. जो ओनर्स हैं उनके पास तो अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी आ गई, जबरदस्त ग्रोथ आ गई. और जो हमारे जो ये वर्कर हैं, दीज आर इन द ह्यूज ग्रोथ. एंड जो वर्कर हैं इसके हाल इज इन वेरी पुअर कंडीशन, वेरी पुअर. कैसे वेरी पुअर है? इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एनसीईआरटी में इसके लिए वर्ड यूज किया गया है फॉर पुअर. इट वाज अ हार्वेस्ट ऑफ सॉरो. इतना बुरा हाल था यहाँ पे, हार्वेस्ट ऑफ सॉरो. और हुआ क्या, अब मॉरल जो हमारा रूरल सिस्टम था ये ब्रिटिशर्स का,
वो सारा हिल गया, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ वाज डिस्टर्ब्ड एंड डिसरप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड, एंड यू नो देयर वाज टोटल इनसैनिटरी कंडीशन, देयर वर वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो 14 से 16 घंटे काम कर रहे थे. सो these are the impacts of industrial revolution here. So 14 to 16 hours were the working hours, and not just for males, even for females and even for children, right? The wages were very low. So only after the 19th century we will find that conditions improve. 19th century onwards conditions जो होती हैं वो थोड़ा सा improve करती हैं. Okay, so I'll just give you a quick review of that. Why did we study all above? इसको पढ़ने से आखिर हमें फायदा क्या हुआ? Because see, it had an we can appreciate now that whatever was happening in Britain and what was happening in industrial revolution, जो उसका असर ब्रिटेन पर हुआ, it had direct impact on Indian administration, right? And Indian policies, इसका direct impact हमारे पर था. That is why we studied all this. Number one. Number two, right now the merchant class अब यहाँ पर strong होगी. The merchant class was growing stronger, and merchant class was strong, and they started questioning the monopoly of East India Company. मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको क्वेश्चन करने लगे वो जो थे वहां के लोकल लोग थे, ठीक है ना, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्टेड अर्न मनी आउट ऑफ इंडिया. इनफैक्ट अगर एक जो ऑथर हुए हैं रमेश चंद्र दत्त, जिनका नाम है, and then in 1901 he writes a book. I'll refer to this book again and again. It is known as the economic history of India. Please इस बुक का रट्टा मार लीजिए इस नाम का, the economic history of India. राइट तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो ये बुक थी, इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा द एम ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी of 1812 was to discover how Indian manufacturers could be replaced by British manufacturers and how British industries could be promoted at the expense of Indian industries. ऐसा इसके अंदर क्या कहा गया, I'll just repeat it for you. To discover how Indian manufacturer could be replaced by the British manufacturer and how British industry could be promoted at the expense of the Indian industries. British also tried to increase number of purchases by following a policy of fresh conquest and occupation of protected states like of these states like Awadh, right? Now many British officials जो political leader थे, इनको भी लगा कि इंडिया के अंदर अब रेवेन्यू जो है कलेक्शन है वो कम करनी चाहिए. अब इमेजिन ये ब्रिटिश रिएक्शन वहां पर क्या आ रहा है, पॉलिटिशियन का, एक मिनट, हाँ, पॉलिटिशियन एंड देन ऑल दीज पीपल, क्या कहते हैं इनको, पॉलिटिकल लीडर और या बिजनेसमैन का, कि इंडिया के अंदर रेवेन्यू कम कर दो. ये स्टेटमेंट ट्रू है जी, क्यों ट्रू है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, सो दैट इंडियंस कैन, वेरी इंटरेस्टिंग, इंडियंस कैन बाय ब्रिटिश गुड्स, ताकि इंडियंस उनके गुड्स को खरीद सके. उन्होंने इसलिए ऐसा यहां पर कर दिया. सो and they also even supported westernization of Indian culture. Westernization, इससे क्या होगा, Indians will develop taste for British goods. हाँ, अंग्रेजी सब कुछ हमारा, everything would be British. So slowly अगर मेरे को ये पूरी की पूरी बात कंक्लूड करनी है, I can conclude it in one sentence में कंक्लूड कर सकता हूं, and that is, please note down the statement in your copies when you are writing, that agricultural India was made an economic colony of industrial England. This is the summary of the whole whatever I've talked to you before, and this can be questioned in paper as it is, that agricultural India was made an economic colony of the industrial England. हम raw material देते. Okay, so the thing is that this has turned into quite a long lecture. तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मैं इसको 2 lectures में पूरा करूंगा. Now I will be finishing this off in 3 lectures. सेकेंड लेक्चर के अंदर हम इसी को, ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी उसको कंटिन्यू करेंगे, उसकी और डिटेल में जाना जाएंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट पेजेंट्री, अबाउट आर्टिसन क्लास, अबाउट जमींदार, न्यू लैंडलॉर्डिज्म,
एंड ऑल डिटीरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ऐसी जो सारी बातें हैं वो सारी, एंड मॉडर्न इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के बारे में, तो सच थिंक पॉवर्टी एंड फेमीन्स, ऐसी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे अब बातें करेंगे। ठीक है जी। तो अब दैट मीन्स पूरा जो इकोनॉमी है वो 3 पार्ट्स में होगी। वन जो अभी हमने कर लिया है, सेकेंड पार्ट जिसके बारे में मैं बोल के चुका हूँ आपको, एंड थर्ड पार्ट विल बी दैट ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, एंड जितनी वो हमारे सिस्टम्स आए थे उनके बारे में बात होगी। सो दैट्स इट इन दिस लेक्चर। और नाउ आई जस्ट हैव अ वन रिक्वेस्ट टू यू कि आप प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया चैनल पे लाइक ऑलवेज, एंड सेकेंड थिंग इज सब्सक्राइब, बिकॉज व्हेन यू सब्सक्राइब आपके सीधा मेल के अंदर ये वीडियो के बारे में आ जाएगा, न्यू वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड, यू विल सेव योर टाइम। सो दैट इज़ ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।